what is this chapter about? Okay, it's talking about frogs and that too meeting with frogs. So ये कौन सी meeting है? Okay, what is this? We have heard about the frog prince. We have heard about different stories which are fables, animal related. But what is this story about? Okay, what is this meeting with the frog? Alright, let's look at this in the chapter. But before we start, okay, हमारे पास अलग अलग किस्म के pets होते हैं. But क्या आपने frog को pet करके रखा है किसी ने? Okay, do you have a frog as a pet? Perhaps the story is based on that. Let's check it. But let's do a warm up before that. If you are allowed to carry an animal to your school, which animal will you carry along with you? अगर आपके स्कूल में एनिमल लेके आने की परमिशन मिल जाती है तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो आपको आप स्कूल ले जाना पसंद करोगे? Have you heard about Mary? Okay, Mary had a little lamb. So she took her lamb to school one day and you know what happened, right? Everybody was laughing, everybody was having fun, है ना? So likewise, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो आप किसको लेके जाना चाहोगे? What will happen if your pet animal becomes invisible for everyone in the class except for you? और अगर ऐसा हुआ, okay, आप अपने पेट एनिमल को लेके तो गए हो, बट वो पेट एनिमल जो है वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप उसको देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? What good thing or mischief will you do then? और अगर for instance वो एनिमल क्लास में भागने लगा तो क्या होगा? ओके, या फिर कोई मिस्चिफ करता है तो क्या होगा? ओके, सो व्हाट इज द गुड थिंग या फिर व्हाट इज द मिस्चिफ दैट यू विल डू? ओके, नाउ लेट्स read the synopsis and let's understand what is this chapter is about. Boy Meets Frog was the first chapter from The Guardians of Lorry, written by Daniel Errico. The story is a stunning experience of a schoolboy who notices peculiar and strange things about a frog, and to his surprise, none have noticed the same. So, ये story है from it is one of the first chapter of Boy Meets, it's known as Boy Meets Frog and it's from the Guardians of Lorry. Okay, तो इसमें ये जो boy है, okay, वो मिलता है एक फ्रॉग से, या वो एक फ्रॉग को नोटिस करता है जो अजीब सा होता है एंड वो उस फ्रॉग के बारे में उसके अजीब अजीब हरकतें देखता है फ्रॉग्स की, जो किसी और को नज़र नहीं आती सिवाय इस बच्चे के. और क्या होता है? लेट्स सी इट. ओके, I was sitting in the class when I saw the frog for the first time. Miss Weaver had been my teacher for a few months and was best known around Stagwood for having a stack of black hair that rose a foot above her head. Okay, so ये जो बच्चा था, okay, वो क्लास में बैठा था जब उसकी पहली बार उस फ्रॉग पे नज़र गई. और जो मिस वीवर थी वो तो उनकी क्लास टीचर थी. Okay, she was a class teacher of him. Okay, and she was best known, okay, for having a stack of black hair that rose a foot above her head. Okay, so इस बच्चे की क्लास टीचर जो थी वो थी मिस वीवर. Okay, और she was best known in Stagwood. Okay, उनके काले घने बालों के लिए. Alright, before the school year started, I had heard rumors about her and within a week I realized that they were all true. So वो कह रहा था कि स्कूल शुरू होने से पहले मैंने उनके बारे में कुछ रूमर्स सुने थे, ओके, कुछ बातें सुनी थी और फिर मुझे पता चला कि वो सच है. For one thing, she did in fact wear the same outfit every day. The colors changed, but she always had on striped pants and a striped jacket. ओके, सो उन रूमर्स में एक था कि वो हर दिन एक ही टाइप का आउटफिट पहनती थी. ओके, कलर्स डिफरेंट होते थे बट पैटर्न सेम होती थी, जहाँ पे स्ट्राइप्ड पैंट्स होती थी. ओके, पैंट्स विथ लाइंस ऑन देम, स्ट्राइप्ड, एंड एक स्ट्राइप्ड जैकेट पहनती थी. ओके, फॉर अनदर थिंग शी वॉज माइंड नम्बिंगली बोरिंग. मतलब वो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी. The kind of boring that makes your eyes shut without your permission. मतलब वो इतनी बोरिंग थी.
ओके कि बच्चों को बहुत नींद आती थी उसके क्लास के बाद. The biggest problem, though, was the stories. She was obsessed with tales of formal students who had become some kind of famous. और तीसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि वो अपने पुराने स्टूडेंट्स के किस्से बताती रहती थी क्लास में. ओके सो एंड स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो काफ़ी फेमस हो गए थे उनके बारे में जो किस्से बताती थी वो इन बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम था. The first couple of times weren't bad, maybe even kind of interesting, but by the second week of school she had started repeating herself just like her outfits. So पहले तो मज़ा आता था सुनने में वो स्टोरीज, बट जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ने लगे, स्पेशली फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स ओनली, बच्चों को वो स्टोरीज बोरिंग लगने लगी एंड उनको वो मैम भी बोरिंग लगने लगी और उनको लगा कि शी इज़ रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन जस्ट लाइक द वे वो अपने आउटफिट्स रिपीट कर रही थी. इट वॉज अ मोमेंट ऑफ एक्सेप्शनल बोर्डम व्हेन आई सॉ द फ्रॉग. इट्स लिटिल ग्रीन फेस वॉज प्रेस्ड अप अगेंस्ट द विंडो नियरेस्ट टू मी. My pencil stopped dead in its stubby tracks. So now इस बच्चे की नज़र पड़ती है एक फ्रॉग पे. बहुत बोर हो चुका होता है क्लास के बीच में और उसके अचानक से अपने विंडो के पास एक फ्रॉग बैठा था जिसका फेस हरे रंग का था, उस पर नज़र पड़ जाती. ओके हिज पेंसिल लिटरली स्टॉप्ड राइटिंग. आई couldn't stop looking at the frog and it couldn't stop looking back. We were locked in a staring contest with unknown stakes. So अब ये बच्चा ना बहुत बोर हो चुका था और उसकी जो नज़र पड़ गई उस फ्रॉग पे, ही जस्ट couldn't take his eyes off. ओके वो फ्रॉग को स्टेयर कर रहा है, फ्रॉग उसको स्टेयर किए जा रहा है और एक दूसरे के से नज़रों से नज़रें मिला है. जस्ट लाइक द आई स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट हम लोग खेलते हैं ना कभी कभी मजाक में कि एक दूसरे के आँखों में आँखें डाल के देखते रहो, जो पहला ब्लिंक करेगा वो आउट हो जाएगा. सो वैसे वाले जैसे कि दैट फीलिंग दैट बॉय हैड कि जैसे कि वो कॉन्टेस्ट चल रही है. ओके maybe some frogs blinked, but with its eyes smushed against the glass, this one didn't. Stagwood Forest was just beyond the schoolyard and it was riddled with frogs, but they always avoided people. I knew right away, in a way that I could think better than I could say that this frog was different. So दैट्स व्हाट द चाइल्ड वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कभी तो ब्लिंक करेगा, बट ये फ्रॉग ब्लिंक नहीं कर रहा था. ओके उसके आंखें जैसे कि नो दे वर लाइक स्मश्ड अगेंस्ट द ग्लास. ओके ग्लास पे चिपकी हुई थी एंड यू नो अब ये जो लड़का था वो काफ़ी ऐसे कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वहाँ पे स्टैगवुड फॉरेस्ट में जो स्कूल से थोड़ी दूरी पे ही था काफ़ी सारे फ्रॉग्स थे, बट nobody used to come towards the people. लोगों से जनरली आप देखोगे, अगर आप फ्रॉग देखोगे कभी आप किसी जंगल सफारी पे गए हो या फिर कोई गांव गए हो तो वहाँ पे जनरली आप फ्रॉग्स देखोगे, या फिर मॉनसून सीजन में भी आपके सोसाइटी गार्डन वगैरह के साइड पे भी आप कभी कभी फ्रॉग्स देखोगे. बट ये फ्रॉग्स जो होते हैं ना ये कभी भी इंसान को देख के भाग जाते, रुकते नहीं हैं. ओके इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ फ्रॉग हु इज़ देयर. ओके सो इसको लगता है कि ये जो फ्रॉग है ना ये थोड़ा डिफरेंट है. ओके बिकॉज ही स्टैंडिंग देयर, ही स्टेयरिंग एट हिम. ओके आई ट्राइड टू लिसन बैक इन टू मिस वीवर just in time to hear the end of her story about Martin Shandles, the now famous comedian. We were supposed to be learning long divisions, but something had reminded her of Martin. I knew exactly what bad joke she would end the story with, and much less about long division. So फिर ये जो बॉय था उसने अपनी नज़र हटा के उसने मिस वीवर के जो सिखा रही थी पढ़ा रही थी उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की बड़ी कोशिश की. एक्चुअली मिस वीवर जो है मार्टिन शैंडल्स के बारे में बात कर रही थी जो कि अब एक फेमस कॉमेडियन है. उनके स्कूल का स्टूडेंट था जो अब एक फेमस कॉमेडियन बन गया है. बट एक्चुअली वो क्लास होनी चाहिए थी मैथमेटिक्स की ऑफ लॉन्ग डिवीजन. बट लॉन्ग डिवीजन पढ़ाते पढ़ाते मैम को याद आ जाता है मार्टिन के बारे में वो किस्सा बताना शुरू कर देती है और लॉन्ग डिवीजन के बारे में कुछ ज़्यादा फोकस ही नहीं करती है. ओके सो whenever he acted up in class, I'd say,
we've got a real comedian on our hands, don't we? And I was right, she said with a giggle. Okay, so वो बता रही थी कि जब भी वो कुछ whenever he acted up in class, मतलब जब भी वो अपना कॉमेडी का कुछ बताता था या फिर कुछ enact करता था, तो मैम कहती थी, मैं हमेशा उसको बोलती थी कि ओ हमारे क्लास में कोई तो एक कॉमेडियन है ना, एंड रियली आई वाज राइट. Okay, and now he is a famous comedian. I was sure that Miss Weaver would see the frog eventually, but I was wrong. Nobody did. When I looked again to see if it was still there, I noticed something shiny. It made me forget all about class and Miss Weaver and Martin Chandles. There was no denying it. This frog had put on a tiny pair of glasses. So, उसको लग रहा था, इस लड़के को लग रहा था कि मिस वीवर भी जो है वो इस फ्रॉक को नोटिस करेगी, बट किसी ने उसको नोटिस नहीं किया था. और ये फ्रॉक जो है ये सिर्फ इस बॉय को दिख रहा था. ओके, बाकी किसी को नहीं दिख रहा था. एंड नाउ ओके, उसने एक नोटिस किया, कुछ तो चमक रहा है वहाँ पर, शाइन हो रहा है. ओके, अब उसको देख के, उस शाइन को उसने जब देखा, वो अपने क्लास में क्या चल रहा था भूल गया, एंड उसकी नज़र उस पर ही गई. और फिर उसने नोटिस किया जो फ्रॉग है उसने चश्मे पहने. आई वॉन्टेड टू लेक्चर इट, टू एक्सप्लेन दैट फ्रॉग्स डोंट वेयर ग्लासेस. It bothered me that it didn't already know that. On top of that, it had been staring at me for at least 5 minutes. It seemed to be bordering on rude. Okay? So, उसको उसके बारे में डिबेट करना था फ्रॉग के साथ कि यार फ्रॉग्स जो है वो चश्मे नहीं पहनते. बट and it started bothering him also कि यार ये कैसे हो सकता है, how is this possible. Okay? उसके ऊपर वो फ्रॉग जो है उसको घूरे जा रहा था. 5 मिनट हो गए थे, वो घूरते जा रहा था इसको. अब इसको लग रहा था दिस इज़ वेरी रूड. ये ऐसे कोई किसी को बार बार कैसे ऐसे स्टेयर करते रहेगा. Could a frog even be rude? I wasn't sure. But the bigger question was why it was so interested in me. So क्या कोई फ्रॉग रूड हो सकता है? वो सब छोड़ दो. सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये फ्रॉग इतना मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है. Noticing me engrossed in my thought, she said, sitting down at her desk, since you don't feel the need to listen, why don't you solve a problem on the board instead? अब इसके ऊपर नज़र पड़ जाती है मिस वीवर की ऑन द बॉय. ओके, और वो उसको लगता है कि ये तो अपनी दुनिया में मस्त है. तो मैम उसको बोलती है कि क्योंकि तुम्हें मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना तुम आगे आ जाओ और ब्लैक बोर्ड पे ये सम सॉल्व कर दो. माई स्टमक immediately did a flip. Then it did a flop. The problem would take a minute or two to solve, and being in front of the class always made me nervous. How could I be expected to do anything when there was a spectacled frog staring me down? So, अब जैसे ही मैम ने उसको बोला, उसके पेट में तो मतलब he started feeling nervous. Okay, तो जब भी हम nervous होते हैं, so we generally the first reaction comes from our stomach only. It starts churning and making different sounds and all. So वैसे ही उसके पेट में ऐसे जैसे गोला आ गया, and then उसको पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में 1 या 2 मिनट लगेगा, बट फिर भी पूरे क्लास के सामने सॉल्व करना है, उससे तो वो नर्वस भी था. और उसको लगता है कि क्या और भी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरे सामने एक चश्मा पहन के बैठा है एक फ्रॉग, ओके, जो मुझे घूरे जा रहा है, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बिना नर्वस हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. I walked to the right of the equation on the board so that I could check on the frog with a glance. Despite the distraction, I did my best to focus. Halfway through, I saw that the frog had moved towards the front of the classroom. It stopped at the window by Miss Weaver's desk. It took me a moment to figure out what it was doing. I couldn't believe what I was seeing. It was trying to lift the window. So, अब इसने ये ब्लैक बोर्ड के पास गया एंड ही स्टार्टेड टू सॉल्व द इक्वेशन. बट बीच बीच में उसकी नज़र उस फ्रॉग पे जा रही थी. ओके, और
इतना सारा डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी he was trying to focus on the equation that he was trying to solve. Okay? और बीच में ही सॉल्व करते करते उसकी नज़र गई तो उसने देखा कि जो फ्रॉग है वो क्लास के आगे की तरफ आया है. ओके और वो मिस वीवर के डेस्क के पास बैठा है, वहाँ पे एक जो खिड़की है वहाँ पे बैठा है. एंड अचानक से वो देखता है कि वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है. फिनिशिंग द प्रॉब्लम सम बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अब इसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से भटक गया है. Okay, this boy is not able to concentrate. I made a mistake and then quickly erased it. और उसने गलती करके जल्दी से उसको erase कर दिया. The next time I looked over, the window was open. Why should that surprise me? Of course, a frog with glasses would also be super strong. The window was only open an inch, but that was enough for it to slip through. I dropped the chalk and some of my classmates laughed. Okay? अब मतलब वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था और फिर उसने देखा कि विंडो जो है 1 इंच खुल गई है. उतनी जगह तो फ्रॉग के लिए सफिशिएंट है अंदर घुसने के लिए, क्लास के अंदर आने के लिए. और वो जैसे ही देखता है तो मतलब उसकी नज़र तो वहीं पे है और अचानक से इसके हाथ से चौक भी स्लिप हो जाता है एंड गिर जाता है. तो सारे क्लासमेट्स जो है वो हंसना शुरू कर देते. बेंडिंग डाउन टू पिक इट अप. I tried convincing myself that when I stood back up again the frog would be gone. It's not there. I just think it's there. Okay? So अब ये जैसे ही वो चौक उठाने के लिए बेंड करता है वो प्रे कर रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है कि काश जब मैं उठूँ ओके तब वो फ्रॉग ना हो, इस क्लासरूम से चला गया हो. तो फिर वो सोचता है इट्स नॉट देयर. फिर सोचता है आई जस्ट थिंक इट्स देयर. मतलब वो ही इज़ इन डबल माइंड की वेदर वो फ्रॉग है या चला गया. ओके व्हेन आई स्ट्रेटेंड अप द फ्रॉग वाज सिटिंग ऑन मिस वीवर्स लेफ्ट शोल्डर. दिस वाज अ ब्रेव फ्रॉग. सो जब वो देखता है, उठ के खड़ा रह जाता है तो देखता है कि जो फ्रॉग जो है वो मेंढक बैठा है मिस वीवर के लेफ्ट शोल्डर पे. ओके लेफ्ट कंधे पे बैठा है वो. एंड दिस बॉय ही स्टार्ट्स थिंकिंग वाओ ये फ्रॉग तो काफ़ी ब्रेव है. Her head blocked the class from seeing it, and I realized that I was still the only one who could. Either the frog was real or my imagination had outdone itself. Okay, और वो इस तरीके से बैठा था उनके कंधे पे कि कोई भी दूसरा बच्चा उसको ना देख पाए. बट फिर ये बॉय रियलाइज़ करता है कि शायद से सिर्फ मैं इसको देख पा रहा हूँ. क्या ये सच में बैठा है या ये मेरा इमेजिनेशन है? क्योंकि उसको लग रहा था कि क्लास में और कोई भी उस फ्रॉग को नहीं देख पा रहा. बट उसको लग रहा था मेरा इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही है. इट वॉज़न्ट ऑल दैट सरप्राइजिंग दैट मिस वीवर डिडंट फील इट देयर बिकॉज द शोल्डर पैड्स इनसाइड हर जैकेट वर लार्ज एंड फ्लफी. अब ये सोचता है कि शायद से मिस वीवर को फील नहीं हो रहा है क्योंकि उनका जो जैकेट था उसके शोल्डर पैड्स जो होते हैं वो काफ़ी मोटे थे. ओके सो इसके लिए उनको रियलाइज़ नहीं हुआ. I had heard that she rested her head on them like pillows during her breaks. So उसने ये भी सुना था कि जब ब्रेक्स होते हैं तभी वो अपने वो शोल्डर पैड्स पे सर रख के सो जाती है, रेस्ट करती है. There was a frog sitting on Miss Weaver's shoulder and nobody else knew it. And I was supposed to be doing math. अब ये सोचता है मिस वीवर के कंधे पे एक फ्रॉग बैठा है, किसी ने नोटिस नहीं किया है और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये मैथ का सम सॉल्व करूँ. Now that it was closer, I could see the frog better. It didn't look like some new species of frog to me. It looked like every other frog I had seen except for the glasses. So अब उसको फ्रॉग का एक बेटर व्यू आ रहा था. तो और वो मतलब उस बॉय को लग रहा था कि ये तो नॉर्मल फ्रॉग के जैसा ही है. ओके जैसे उसने देखा है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसने चश्मा पहना है. I wondered if they had made contact small enough for a frog. But it wasn't the right time to worry about frog vision. That would be a job for a frog eye doctor anyways. So अब ये सोच रहा है कि यार इतने छोटे ग्लासेस भी बन सकते हैं for a frog. बट फिर वो सोचता है कि मुझे क्यों मैं क्यों सोचूं इसके बारे में, ये तो फ्रॉग आई डॉक्टर ही सोचेंगे. ओके I had daydreams all the time when I was drawing and sometimes I got lost in them. It was possible. I thought that my imagination had just carried me away. So बच्चों कभी कभी क्या होता है कि
somebody tells us a story, कोई हमें किस्से बताता है, and we get so involved in those stories कि हम उसको imagine करने लगते हैं as though we are a part of that story. ओके, सो दिस इज़ वॉट दिस बॉय इज़ ट्राइंग टू से कि कभी कभी मैं बहुत डे ड्रीम करता हूँ, मैं अपने सपनों में खोया रहता हूँ और इमेजिन करता रहता हूँ कोई कोई अलग अलग चीज़ें. सो यू नो मे बी इसकी वजह से मेरा इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है एंड वो मुझे इट्स जस्ट कैरिंग मी अवे फ्रॉम वॉट आई एम सपोज टू डू. I tried one last time to explain the frog away as part of an elaborate daydream. I concentrated hard, finished the problem and put the chalk down. The frog couldn't be real. I shook my head confidently. So अब इसने ठान ली कि अब मैं अपने इमेजिनेशन को ओवरपावर करने नहीं दूंगा. ओके, एंड उसने फुल कंसंट्रेशन के साथ वो सम फिनिश कर दिया एंड ही पुट द चॉक डाउन and he returned to his seat thinking that this frog cannot be real. When I turned to Miss Weaver, I saw the frog looked me square in the eyes and nod. A moment later, it disappeared into Miss Weaver's hair. So जब इस बच्चे ने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि ये फ्रॉग जो है वो मिस वीवर के पास ही बैठा है. ओके, और उसको देखे जा रहा है और नॉड कर रहा है. एंड देन अचानक से वो डिसअपियर हो गया मिस वीवर के बालों में. ओके, एंड दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ अ बॉय. ओके, जिसने एक फ्रॉग को इमेजिन किया ड्यूरिंग हिज क्लास लेसन्स. ऑलराइट, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक ऑफ गार्डियंस ऑफ लॉरे रिटन बाय Daniel Errico. So Daniel J. Errico is an American children's book author and children's media content creator. The Guardians of Lorry was written in collaboration with Navdeep Singh and Vanessa Beleza. So, बच्चों आप भी सोचते होंगे ना कि कभी कभी क्लास के बीच में आप भी अपने ही ख्यालों में खोते होंगे and you also must be imagining different things, है ना. So this is exactly okay somewhat like that जो हमें feel होता है कि you know imaginary fantasy stories and all these things. Okay, this is a part of that. And Daniel J. Errico जो एक American children's book author and children's media content creator हैं, उन्होंने गार्डियंस ऑफ लॉरे लिखा जो एक जो नवदीप सिंह एंड वेनेसा बेलेजा के साथ एक कोलैबोरेशन था. सो अलग अलग स्टोरीज रिटन बाय दीज टू अदर ऑथर्स ऑल्सो वर पुट अप इन दिस कोलैबोरेशन. एंड येस, they are children's book and children's are full of creativity and full of imagination. And आप देखोगे कि even we know as adults कि बच्चे जो होते हैं उनके imagination के उनके creativity को कोई भी beat नहीं कर सकता. Alright children, so now read this beautiful chapter all over again and start getting on to the exercises. Okay, but before that let's do the words that we need to know. Okay, the new words that we've come across in this chapter. Stack is a large pile. Okay, बड़ा सा pile करना. Okay, mind numbingly मतलब excessively boring, mind numb कर देना, boring होना. Okay, दिमाग ही काम नहीं करता है. और dull. Okay, obsessed is intensely preoccupied with a thought or thing. Stubby, okay, it means stunted. Stakes is to put something at risk. Okay, smushed is compressed, yeah, squashed. Okay, giggle is to laugh gently in a nervous manner. And spectacled means having the appearance of wearing spectacles, chashma pehne hue. All right, now क्वेश्चन टाइम में यू हैव रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, यू नीड टू आंसर देम. देन आंसर द फॉलोइंग इज द नॉर्मल क्वेश्चन आंसर थिंग. देन थिंक एंड आंसर. हियर यू हैव टू यूज योर ओन इमेजिनेशन, योर ओन क्रिएटिविटी एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर स्टडीज नाउ. सो ग्रामर स्टडीज में हम करेंगे आज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. जैसे कि हमें सबको पता है कंजंक्शंस क्या है. कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, जो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं टू मेक कंप्लीट सेंस या टू टेल अस मोर अबाउट द सेंटेंस. ओके, नाउ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो दे कंबाइन द सेंटेंसेस विच हैव इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं जिनके इंडिपेंडेंटली ऑल्सो दे मेक सेंस. ओके, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं
ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. ओके, सो जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो कम फॉर लाइट क्लॉजेस. सो सिमिलर क्लॉजेस जो होते हैं इनमें हम यूज़ करेंगे एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, ये आ जाएंगे लाइट क्लॉजेस पे. जैसे आई लाइक टू ईट एन एप्पल एंड अ बनाना. माई डैड इज़ अ टीचर एज वेल एज अ सोशल वर्कर. ओके, बट स्टिल they come for opposite clauses. So ये like clauses हो गए जो positive aspects है and you know they are making sense also. But अब ये but और still जो होता है ये opposite हो जाता है. मतलब एक clause के opposite दूसरा clause हो जाता है. She was ill, वो बीमार थी, but she went to school, पर वो स्कूल गई थी. There is no cloud, still it is raining. ओके, कोई भी बादल नहीं है बट पर फिर भी बारिश हो रही है. क्लियर? और अदरवाइज, आइदर और, नीदर नॉर. ओके, दे कम फॉर ऑल्टरनेटिव क्लॉजेस. यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल. ओके, दे हैव नाइदर हर्ड अबाउट द घोस्ट नॉर सीन. उन्होंने ना ही घोस्ट के बारे में कुछ सुना है और ना ही कुछ देखा है, किसी को देखा है. ऑलराइट, फॉर, देयरफॉर, सो, दे कम फॉर शोइंग इन्फेरेंस. ओके, वी कुड नॉट सी हिम फॉर ही वॉज हाइडिंग इन द डार्क. सो हम उसको देख नहीं पाए क्योंकि वो अंधेरे में छुपा हुआ था. शी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, देयरफॉर शी फेल डाउन. ओके, सो यहाँ पे इट्स जस्ट अ रीजनिंग टाइप ऑफ थिंग. ओके, यहाँ पे जैसे कि उस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए हम रीजन दे के नेक्स्ट सेंटेंस बता रहे हैं. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. आई नो अबाउट Pram. Okay, dash, I will not tell you about him. I know about Pram, but I will not tell you about him. Should we go by car or take the bus? Okay, I am allergic to dogs, although I have 2 of them. Alright, so likewise do the rest of them. Join the sentences using the coordinate conjunctions. The team worked hard, the team won the game. The team worked hard and won the game. Tina has a car, her brother has a bike. Tina has a car, but her brother has a bike. Alright, so now he can buy the book, he can borrow it from the library. He can either buy the book or borrow it from the library. Clear? Now likewise do the rest of them. Word study. You have to use the underlined words to make sentences with different meaning. Do not change the form of the words, and one is done for you. Okay? Miss Weaver had a stack of black hair that rose a foot above her head. Okay? So rose को आपको rose ही रखना है. Okay? आपको change नहीं करना है. Miss Weaver had a lovely and beautiful rose garden. So अलग meaning है. एक rose है, rose मतलब उठ जाना, और दूसरा है rose is the flower rose. Okay? Miss Weaver used to wear the same outfit every day. Okay? So इसको आपको wear को अलग meaning जो है वो बताना है. Okay? Right? And likewise you have to do the rest of them. Okay? Understand the given hints and find words from the given puzzle. Okay? K of KFC is Kentucky. Okay? An auditorium to watch sports, you can say gallery. Okay? An elegant place for a king to live, palace. Alright, likewise do the rest of them. Okay? And you have to find these words in the crossword. Okay? Writing time. Letter writing करना है आपको. Okay? You are Rohan or Rohini of Bhopal. You have the habit of reading English newspaper daily, early in the morning. This habit has helped you a lot to improve your skill in this language. Your friend is facing a great problem in understanding English in his school. Write a letter to your friend explaining him or her how you improved yourself in this language with the help of newspaper. So, आप रोहन हो या रोहिणी हो फ्रॉम भोपाल. ओके, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो गई है जिसकी वजह से आपके इंग्लिश स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए.
सो आपका एक फ्रेंड है या आपकी एक फ्रेंड है जिसकी हु इज़ फेसिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, तो आपको लेटर लिख के बताना है कि कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, उसकी वजह से आपका इंग्लिश इम्प्रूव हुआ है, एंड you can give a suggestion that their friend also should start doing something like that. All right, so but before you start writing this, read this beautiful chapter, okay? Then solve all the questions from the exercises. Grammar skills पे focus करो, grammar के exercises complete करने हैं, and then you can get on to the writing skills. All right, so children, after writing a letter you can also write an imaginative story अगर आपने भी ऐसे कुछ daydream किया हो या imagine किया हो. All right, so get going.